السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شہاب الدین غوری اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 30۔ سلطان شہاب الدین غوری کے دائیں جانب قطب الدین ایبک، غیاث الدین خلجی، ایبا، حسین خرمل اور کچھ دوسرے سالار اور عمرا بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے جانب سلطان شہاب الدین کے وزیروں میں سے ضیاء الملک درمیشی، محمد عبداللہ سنجری، لشکر کے قاضی شمس الدین بلخی، حاجب محمد علی غازی اور دیگر امویین اپنے منصب اور مراتب کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دوران سلطان شہاب الدین اپنے سارے سالاروں اور امویین کا جائزہ لیتا رہا، پھر انتہائی نرم آواز اور شفقت بھرے لہجے میں وہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: عزیزان من، دریائے سرسوتی کے نزدیک ترائن کے ان میدانوں میں ہم دوسری بار داخل ہوئے ہیں۔ ترائن کے میدانوں میں جب پہلی بار داخل ہوا تھا تو جنگ شروع کرنے سے پہلے مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی، اب میں ان کا اعادہ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں یاد ہوگا جہاں کہیں بھی میں نے جنگ شروع کی، پہلے اپنے خداوند قدوس کے حضور دعا مانگتا ہوں، لیکن ترائن کی پہلی جنگ میں ایسا کرنا بھول گیا تھا۔ شاید میں اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں اس بات کا مجرم ٹھہرایا گیا اور مجھے اس کی سزا بھی خوب ملی۔ اس بار میں اس کوتاہی کا اعادہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں نے جو دشمن سے نمٹنے کے لیے لایا میں تیار کیا ہے، اس کی تفصیل تم سے کہتا ہوں۔ پہلی بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دشمن کے پاس اس وقت 3 لاکھ کا لشکر بالکل تیار ہے اور دن بدن اس کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے مختلف راجاؤں کی طرف سے لگاتار کمک انہیں مل رہی ہے۔ لہٰذا میں جنگ شروع کرنے میں زیادہ دن نہیں لوں گا، اس لیے کہ جو وقت گزرے گا دشمن کے لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی قوت زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتی چلی جائے گی اور میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا۔ دوسری بات جو میں تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دشمن کے پاس 3000 سدائے ہاتھی ہے جو جنگوں کے دوران پیش قدمی کر کے حملہ ور ہونے کے ماہر ہیں۔ اب ہم نے جہاں 3 لاکھ کے لشکر سے نمٹنا ہے وہاں میں 3000 ہاتھیوں سے بھی نمٹنا ہوگا۔ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق دشمن کے لشکر کی تعداد ہمارے لشکر سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے اور یہ تعداد 4 گنا بھی ہو سکتی ہے۔ راجہ پرتھوی راج کا جو قاصد میرا نام خط لے کر آیا تھا اس کا جواب میں نے اس انداز میں دیا کہ وہ ہماری طرف سے تھوڑے غافل ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے اپنے بھائی سے مشورہ کرنے کی مہلت مانگی ہے۔ ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا ہے کہ میں انہیں جنگ کی طرف سے فی الحال غافل رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی غفلت سے میں وہ فائدہ اٹھاؤں گا کہ یہ جو سارا ہندوستان اور اس کی پوری طاقت و قوت ہمارے خلاف امڑ آئی ہے اسے میرے خداوند نے چاہت تو رگیٹ کر رکھ دوں گا۔ دشمن کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے دشمن پر شب خون مارا جائے گا۔ شب خون میں پورا لشکر حصہ نہیں لے گا، خاص دستے متعین کیے جائیں گے جو اپنی کارروائی کی تکمیل کریں گے۔ ان دستوں کی کمانداری قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمل کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے سلطان شہاب الدین رکا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے سالاروں اور امویین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ میرے پاس، دوسرا قطب الدین ایبک، تیسرا ایبا، چوتھا حسین خرمل کی سرگردگی میں ہوگا۔ لشکر کے وہ دستے جنہیں پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیا جاتا ہے انہیں میں ان لشکریوں میں شامل نہیں کر رہا۔ اگر اس حصے کو بھی شامل کروں تو لشکر کے 5 حصے بنیں گے۔ پڑاؤ کے لیے جو دستے ہوں گے ان کی کمانداری میں غیاث الدین خلجی کو سونپتا ہوں۔ ضیاء الملک درمیشی، محمد عبداللہ سنجری اور قاضی شمس الدین بلخی بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ میرے ساتھ میرے نائب کے حیثیت سے محمد علی غازی اور امیر شکار ناصر الدین دونوں ہوں گے۔ میں نے دشمن کے ساتھ دو بدو جنگ کرنے سے پہلے جو ان پر شبخون مارنے کا منصوبہ بنایا ہے، اس شبخون کے لیے میں نے اپنے دل میں قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمل کا انتخاب کیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر اس میں سے کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔
अगर आप लोग ये ख्याल करते होंगे कि शबखुन में मुझे खुद हिस्सा लेना चाहिए तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन मजीद कुछ कहना चाहता था। इस मौके पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जगह से उठा और सुल्तान को मुखातब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, खुदावंद कुद्दूस को मंजूर हुआ तो शबखुन के लिए मैं, हुसैन, खरमल और ऐबा काफी है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप देखेंगे कि एक बार हम दुश्मन की सब को हिला कर रख देंगे और उन पर साबित करेंगे कि तराइन के मैदानों में अगर हमें पसपाई और हजीमत इख्तियार करना पड़ी थी तो हजीमत और पसपाई का ये दाग हम अपने दुश्मन के माथे पर लगाना भी जानते हैं। शबखुन हमारे लिए आसान होगा, इसके लिए हमें हाथियों से निपटना ही पड़ेगा। इस मौके पर मैं ये कहूंगा कि शबखुन बिल्कुल शब के आखिरी हिस्से में मारा जाए। वो गहरी नींद का गलबा होता है और शब के आखिरी हिस्से में हमें दुश्मन पर जर्ब लगाने का भी खूब मौका मिलेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बात मुकम्मल करने के बाद जब अपनी नशिस्त पर बैठ गया तब कुछ देर तक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराता रहा। फिर कहने लगा, कुतुबुद्दीन मेरे अजीज, जो कुछ तुमने कहा यूं जानो मेरे दिल की आवाज है। जैसा तुमने कहा मेरे बच्चा ऐसा ही होगा। मुझे पहले ही यकीन और भरोसा था कि तुम, ऐबा और हुसैन खरमल यकीनन दुश्मन पर जानलेवा शबखुन मारने में कामयाब रहेंगे। इस जंग को मैं सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा हूँ। इसी बिना पर मैंने हुसैन खरमल को भी सियालकोट से तलब कर लिया है। अब जबकि शबखुन तक का मामला हमारे दरमियान तय हो गया है और जो बात मैं आगे कहना चाहता हूँ वो गौर से सुनना। जिस रात दुश्मन पर शबखुन मारा जाए अगले रोज दुश्मन के साथ पूरे लश्कर के साथ जंग की इब्तिदा की जाएगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, दुश्मन की लश्कर की तादाद 3 लाख है। इनके पास 3000 हाथी भी हैं। मैं भी जानता हूँ, तुम भी इस बात का खासा तजुर्बा है कि हिंदुस्तान के सारे राजा जब हम पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी करेंगे तो अपने हाथियों को आगे रखेंगे। हाथियों के अंदर उनकी सफें भी आगे बढ़ती रहेंगी। इस तरह हमें बैक वक्त 2 पेशकदमियों का मुकाबला करना पड़ेगा, एक हिंदुस्तान के लश्करियों की पेशकदमी और दूसरा हाथियों की पेशकदमी। और मेरे ख्याल में इस जंग में हमारे लिए यह सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला होगा। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था। इस कठिन मरहले से निपटने के लिए मेरे जहन में एक तरकीब है, इसका इजहार मैं तुम लोगों से करता हूँ। तुम लोगों से जो कोई भी इसमें तब्दीली करना चाहे तो इससे बेहतर तजवीज़ पेश करना चाहे तो मैं खुले दिल से उसका खैर मकदम करूं। जो तजवीज़ इस वक्त मेरे जहन में है वो मैं तुमसे कहता हूँ। शबखुन के अगले रोज दुश्मन से टकराने के लिए हम लश्कर की सफें दुरुस्त करेंगे। हमारे शबखुन की वजह से चूंकि दुश्मन को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा, लिहाजा वो फिलफौर हमसे इंतकाम लेने के लिए जंग की इब्तिदा करना चाहेगा। सफें दुरुस्त करने के बाद हम हिंदुस्तान के लश्कर को मौका देंगे कि वो हम पर हमलावर होने में पहल करे। इस तरह हमारा दुश्मन अपने हाथियों और अपने लश्कर को आगे बढ़ाएगा। हिंदुस्तान के सारे राजा, जिनकी तादाद मेरी इत्तला के मुताबिक 100 से भी ज्यादा है, अपने लश्कर के वस्ती हिस्से में रहने की कोशिश करेंगे। वहां वो अपने लश्करों का हौसला बढ़ाएंगे, जंग जारी रखने के लिए उन्हें हिदायत जारी करेंगे। अब हमने जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि हमारा लश्कर पहले की तरह 4 हिस्सों में तकसीम रहेगा। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऐबक, चौथा हुसैन खरमल। हम चारों अपने अपने लश्कर के कुछ ऐसे तीरंदाज मुकर्रर करेंगे जिनके जिम्मे सिर्फ एक काम होगा कि वो अपने तीरों से हाथियों का निशाना बनाएंगे। दूसरे लश्करी हाथियों के अंदर जो दुश्मन के लश्करी सफ़े होंगे उन्हें अपना हदफ बनाएंगे। कुछ देर तक हम दुश्मन के साथ यही खेल खेलेंगे। हाथियों पर तीरंदाजी होगी, हाथियों के अंदर जो सफ़े होंगी उन पर हमलावर हो जाएगा। इसके बाद कुछ इस तरह पसपाई इख्तियार की जाएगी कि दुश्मन ये जानेंगे कि उनकी अलगार और पेशकदमी के सामने हम हिम्मत हार बैठे हैं, दुश्मन के हमलों का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, पसपा हुए हैं और शिकस्त उठाने के दर पे हैं। ये सूरत हाल देखते हुए दुश्मन के लश्कर की अगली सफ़ें जो हाथियों के बीचों बीच होंगी वो आगे निकलेंगी, यानी पहले आगे हाथियों होंगे, पीछे लश्कर होगा। लेकिन जब हम पसपाई इख्तियार करेंगे तो हिंदुस्तान के लश्करों के हौसले बढ़ेंगे, वो हाथियों की पनाह से बाहर निकलकर हमारा पीछा करेंगे। ऐसी सूरत में दुश्मन पर जर्ब लगाने और उसे अपना हदफ बनाने के लिए हम एक और तब्दीली करेंगे। पहले लश्कर के चारों हिस्से पसपाई इख्तियार करेंगे, अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ दुश्मन के उन लश्करों पर हमलावर होंगे जो हाथियों से आगे निकल आए होंगे। उनका मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया जाएगा। जब ऐसा हो चुकेगा तब मैं तकबीर बुलंद करूंगा। मेरी तकबीर के जवाब में सारे सालार लश्करी भी तकबीरें बुलंद करेंगे। उस वक्त मैं और हुसैन खरमल अपने अपने लश्कर के साथ दुश्मन के सामने रहेंगे। ऐबा और कुतुबुद्दीन ऐबक दाएं बाएं हट जाएंगे। दाएं जानिब से होता हुआ ऐबा आगे बढ़ेगा और दुश्मन के बाएं पहलू पर हमलावर होगा।
कुतुबुद्दीन ऐबक जंग के दौरान अपने लश्कर के बाएं पहलू पर होगा, ये भी दाएं तरफ हटकर दुश्मन के दाएं पहलू पर जर्ब लगाएगा। इस तरह सामने की तरफ से मैं और खरमल दुश्मन के दाएं बाएं जानिब से कुतुबुद्दीन और ऐबा जब जर्ब लगाएंगे तो मैदान जंग का वो समा और वो हौलनाकी मुझे उम्मीद है कि दुश्मन के लिए न सिर्फ शिकस्त का बाइस बनेगी बल्कि उनके लिए इबरत खेज भी साबित होगी। यहां तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन रुका, एक बार अपने सारे सालारों और उमायुद्दीन का गहरी निगाह से जायजा लिया, फिर उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और सबको मुखातब करते हुए वो कह रहा था, मेरे अजीजों, जो कुछ मैं कहना चाहता था कह चुका। दुश्मन से निपटने के लिए जो लाए अमल मैंने गुज़िश्ता शब मुरतब किया था वो मैंने तुम लोगों से कह दिया है। अब तुम में से कोई भी इसमें तब्दीली करना चाहे, दुश्मन के साथ जंग के तरीके कार में कोई नया और अच्छा इजाफा करना चाहे तो अपनी जगह से उठकर अपनी तजवीज़ कहे। अगर वो तजवीज़ अच्छी हुई, काबिल अमल हुई तो उस पर यकीनन अमल किया जाएगा। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के इन अल्फाज के जवाब में उसका न कोई सालार उठा, न उसका अमीर, न उमायुद्दीन सल्तनत में से उठकर किसी ने तजवीज़ पेश की। इस पर सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई। इस मौके पर लश्कर के काजी शमशुद्दीन बल्खी अपनी जगह पर उठे और सुल्तान को मुखातब करके कहने लगे, सुल्तान मोहतरम, मैं समझता हूँ आपने दुश्मन से निपटने के लिए जो तजवीज़ पेश की है इससे बेहतर कोई तजवीज़ हो ही नहीं सकती। इस तजवीज़ को सुनने के बाद किसी सालार का अपनी जगह से उठकर या किसी अमीर का खड़े होकर इससे मुताल्लिक कुछ ना कहना इस बात की गुमाजी है कि सब आपकी इस तजवीज़ से मुत्तफिक है और इसी पर अमल किया जाएगा। खुदावंद कुद्दूस को मंजूर हुआ तो आने वाली जंग में कामरानी और फतह मंदी हमारी होगी, लेकिन मेरी आपसे ये मौके पर गुजारिश है कि जिस रात दुश्मन पर शब खुद मारना होगा उस रात आप तहज्जुद के बाद अपने खुदावंद कुद्दूस के हुजूर इंतहाई आजीजी के साथ अपने लश्करियों की कामयाबी और फूजमंदी के लिए दुआ कीजिएगा। मैं भी ऐसा ही करूंगा। इसके साथ ही काजी शमशुद्दीन बल्खी अपनी जगह पर बैठ गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी थोड़ी देर तक शमशुद्दीन बल्खी की तरफ देखते हुए मुस्कुराता रहा, फिर बड़ी इनकिसारी में कहने लगा, आपने जो कुछ कहा है मैं इस पर सख्ती से अमल करूंगा और मेरा दिल कहता है मैदान हमारे ही हाथ में होगा। इसके साथ ही मैं अपने सारे सालारों और उमायुद्दीन का वो इजलास सुल्तान ने खत्म कर दिया था। दरिया सरस्वती के किनारे इमारत में एक रोज ओज का राजकुमार देवदास अकेला बैठा था कि उस कमरे में उसका मामूजात संग्राम दाखिल हुआ। संग्राम आगे बढ़कर उसके पहलू में बैठ गया। देवदास थोड़ी देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरे भाई, आज तेरा चेहरा बताता है कि या तो तुझे कोई खुशी मिली है या तू मेरे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आया है। संग्राम खुलकर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, देवदास मेरे भाई, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। यूं जानो मुझे भी खुशी मिली है और तुम्हारे लिए भी एक अच्छी खबर है। देखो मेरे भाई, जब तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर होगी तो लाजिम है मैं भी खुश होऊंगा। जवाब में देवदास चौंका, फिर बड़े गौर से संग्राम की तरफ देखते हुए उसने पूछ लिया, मेरे भाई, अगर मेरे लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है तो फिर कहो, देर काहे की है? क्या यह अच्छी खबर राजकुमारी कुमार देवी से ताल्लुक रखती है? क्या तुम उससे मिले हो? उसने मेरी पेशकश पर कोई मुस्बत जवाब दिया है? संग्राम मुस्कुराया, कहने लगा, देवदास मेरे भाई, जो कुछ मैं कहने वाला हूँ यूं जानो उसका ताल्लुक कुमार देवी से है भी और नहीं भी। दरअसल ये है बात कि राजकुमारी कुमार देवी ने तुम्हारे सामने ये शर्त पेश की कि अगर तुम ऐबा को हिलाक कर दो तो तुमसे शादी कर लेगी। देखो, ऐबा को हिलाक करना इस वक्त इतना आसान नहीं था। अब ऐबा पर हमलावर होकर उसे नुकसान पहुंचाना या उसका खात्मा करना किस कदर आसान है। मैंने ऐबा से मुतालिक मालूमात हासिल की है। वो खकरों के सरदार की एक लड़की से शादी कर चुका है। वो लड़की बड़ी जंगजू, बेहतरीन किस्म की तेगजन है और ये भी मुझे खबर मिली है कि वो जंगों में ऐबा के साथ रहकर अमली तौर पर हिस्सा लेती रही है। अब मैंने दो कामों का बंदोबस्त किया है। राजा पृथ्वीराज के लश्कर में मेरे कुछ जानने वालों के अलावा कुछ अजीज भी हैं। तुम्हारा काम के सिलसिले में मैंने उनसे तफसील के साथ बात की। उन्हें तुमसे हमदर्दी है और उन्होंने दो तजवीज़ें पेश की है। पहली तजवीज़ ये है कि वो इस जंग में खास तौर पर ऐबा को अपना हदफ बनाएंगे और उसका सर काटने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐबा का सर काटने में कामयाब हो गए तो उसका सर लाकर तुम्हें पेश कर देंगे और तुम वो सर राजकुमारी को पेश कर देना और इस तरह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा और तुम उससे शादी करने में कामयाब हो जाओगे। दूसरा तरीका कार वो कुछ इस तरह इख्तियार करेंगे, अगर वो ऐबा को अपना हदफ ना बना सके या उस पर हमलावर होकर उसे नुकसान ना पहुंचा सके तो उसके साथ काम करने वाले उसकी बीवी को हिलाक कर देंगे। यहाँ तक कहते कहते संग्राम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में देवदास फौरन बोल पड़ा,
असल मसला तो ऐबा का है, उसकी बीवी का नहीं। हिलाक ऐबा को करना है, उसकी बीवी को नहीं। संग्राम ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ सुन लो, उसके बाद एतराज करना। संग्राम ने फिर कहना शुरू किया था, हाँ तो मैं कह रहा था कि जिन लोगों में से मैंने राब्ता कायम किया है उन्हें मैंने समझा दिया है कि जंग के दौरान अगर वो ऐबा का खात्मा ना कर सके तो कम अज कम उसकी बीवी को हिलाक कर दे। देख देवदास, इस जंग में हिस्सा लेने के लिए नहर वाला का राजा भीमदेव और उसका बेटा रामदेव भी आया हुआ है। अपने जिन आदमियों से मैंने राब्ता कायम किया है उनमें से मैंने ये भी गुजारिश की कि जहां वो ऐबा की बीवी का खात्मा करें वहां राजकुमारी कुमार देवी की भाई रामदेव को भी खत्म कर दे। संग्राम के अल्फाज पर उछलने के अंदाज में देवदास चौंक उठा था, फिर नापसंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, संग्राम मेरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो वो काम करना चाह रहे हो कि अगर राजकुमारी कुमार देवी मुझसे शादी करना चाहे तब भी करने से इनकार कर दे। देखो, पहले तो मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुम ऐबा की बीवी को क्यों हिलाक करना चाहते हो। इस बेचारी का क्या कसूर, उसको ऐबा के साथ ही रहने दो। इस तरह कम अज कम ये राजकुमारी किसी मौके पर ऐबा की तरफ तो माइल नहीं हो सकेगी, वरना उसके पास जाकर और ना उसके पास जा सकेगी। खात्मा तो हमें ऐबा का करना चाहिए, साथ ही तुमने एक और शोशा खड़ा कर दिया है, रामदेव का भी खात्मा करने के लिए। क्यों मेरी किस्मत के गुब्बारे से हवा एक मुश्त ही निकालने लगे हो? जवाब में संग्राम मुस्कुराया, कहने लगा, अभी तक मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की और तुम कब्ल अज वक्त बोल उठे हो। हाँ, तो मैं रामदेव को कत्ल करने के लिए कह रहा था। देखो, जब रामदेव कत्ल हो जाएगा तब हम राजकुमारी कुमार देवी के पास आएंगे। अगर तो हम ऐबा का खात्मा करने में कामयाब हो गए तो ऐबा का कटा हुआ सर उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। इस तरह तुम अपना गोहर मकसूर पाने में कामयाब हो जाओगे। अगर हम ऐसा ना कर सके तो हम दोनों राजकुमारी के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि कुमार देवी का भाई रामदेव ने जंग के दौरान ऐबा की बीवी को हिलाक कर दिया, जो इसके साथ जंग में हिस्सा ले रही थी, और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ऐबा ने कुमार देवी के भाई रामदेव को मौत के घाट उतार दिया। जब यह खबर राजकुमारी कुमार देवी के कानों में डाली जाएगी तो याद रखना, कुमार देवी के दिल में अगर अभी तक ऐबा की मोहब्बत ना सही हमदर्दी का भी कोई झोंका है तो वो खत्म होकर रह जाएगा और हालात उसे तुम्हारी तरफ आने से रोक नहीं सकेंगे। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? संग्राम की सारी गुफ्तगू के जवाब में खामोश रहकर देवदास कुछ देर तक सोचता रहा, फिर हार मानने के अंदाज में कहने लगा, संग्राम मेरे भाई, मैंने क्या कहना है? मुझे तो राजकुमारी कुमार देवी की मोहब्बत, उसका साथ चाहिए। ये चीजें मुझे ऐबा के कत्ल की वजह से हासिल हो या उसकी बीवी और रामदेव के मरने से, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। किसी भी सूरत में मुझे राजकुमारी कुमार देवी को इस बात पर आमदा करना है कि मुझसे शादी कर ले, बस। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवदास के अल्फाज पर संग्राम खुश हो गया था, कहने लगा, अगर ये बात है तो आओ तराइन के मैदानों की तरफ चलते हैं, जहां मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान तारीखी जंग की इब्तिदा हो गई है, और फिर देखते हैं कि हमारा ऊंट किस करवट बैठता है। इसके साथ ही दोनों हाथ में हाथ डाले उस कमरे से निकलकर अपने आप को खूब मुसलह करके दरिया सरस्वती के किनारे तराइन के मैदानों का रुख कर रहे थे। रात अपनी तमन्नाओं के आंगन में रक्स करती, हर शय की जियत की बेसबाती की सह सुनाती, खूब आलूद आंखों में अनगिनत सपनों की सेज सजाती। रात अपनी तमन्नाओं के आंगन में रक्स करती, हर शय की जियत की बेसुबाती की सह सुनाती, ख्वाब आलूद आंखों में अनगिनत सपनों की सेज सजाती, किसी बेनाम सी सरगोशी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। मोहब्बत के जजीरों की तरह आसमान पर आवारा अबर जमीन की तरफ झुकते, फिर जमीन के खुश्क चेहरे को झांकते हुए आगे निकल जाते। चारों तरफ नीम तारीख सायों से बगलगीर होते, हवा और सागर की तह में डूबी हर शय जैसी खामोशी थी। हर शय उस सुनसान सहरा की तरह खामोश थी जिसमें हद्दे नजर तक न कोई रास्ता हो न कोई मंजिल हो। अंधेरे में नहलाई मलक्ची कदाज रात रोशनी की महफिल से बगलगीर होने के लिए बेचैन थी, इसलिए कि रात अपने अंजाम को पहुंच रही थी। सुबह के आसार मशरिक में नमूदार होना शुरू हो गए थे। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक और हुसैन खरमल अपने अपने लश्करों के साथ बड़े राजदारी के साथ दुश्मन के लश्कर की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने 3 मुख्तलिफ सिमतों से अपने काम की इब्तिदा की और वो तकबीरें बुलंद करते खौफनाक की तख्तियां लिखते, आंधियों की वहशत खेज काफिलों जियत की दहलीज पर दस्तक देते क़िज़ा के खौफनाक गर्दाबों की तरह हमलावर हो गए थे। ये बड़ा अचानक और एक हौलनाक शबखुन था
جو شب کے آخری حصے میں مارا گیا تھا۔ اس شب خون کی وجہ سے ہندوستان کے راجاؤں کے لشکر میں زرد خزاؤں کی کیفیت شروع ہو گئی تھی۔ قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمل کے حملہ ور ہونے سے راجاؤں کے لشکر میں تقسیم ہوتے زائدیوں خوابوں کی بے ربطی کی طرح افراتفری پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان لشکر کے اندر ہواؤں کے نواح فضاؤں کے ماتم سے کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمل نے دریائے سرسوتی کے کنارے میدانوں میں ایک طرح سے قتل گاہ کا مقروض بنا کر رکھ دیا تھا۔ ختم ہوتی رات کے وقت قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمل کی طرف سے ایک انتہا درجے کا ہولناک اور جان لیوا شبخون تھا۔ جب تک راجاؤں کی لشکری سنبھل کر جوابی کارروائی کرتے، اس وقت تک تینوں مسلمانوں سالار اپنے کام کو اپنے انجام تک پہنچا چکے تھے۔ دشمن کے ان گنت لشکریوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دشمن کے اندر ایک طرح کی افراتفری اور واویلا انہوں نے برپا کر رکھ دیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانی لشکری سنبھل کر ان کے مقابلے صف آرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تب تینوں سالاروں نے تکبیریں بلند کی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب شبخون کی تکمیل کر کے واپس اپنے لشکرگاہ کی طرف جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں اپنے اپنے لشکریوں کو لے کر واپس اپنی خیمہ گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ اس شبخون سے پہلے ہندوستان کے راجاؤں کے لشکری بڑے خوش تھے۔ ان کے دلوں ان کے ولولے جوان، ان کا جوش اور ان کی کامیابی کی امیدیں اپنے عروج پر تھی، اس لیے کہ ان کے راجاؤں، ان کے سالاروں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال کر رکھے تھے کہ ہم اس سے پہلے بھی ترائن کے میدانوں میں مسلمانوں کے سلطان کو بدترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر چکے ہیں، لہذا ترائن کی یہ میدان اب پھر مسلمان کے سلطان کو شکست کا نظارہ کریں گے۔ لیکن اس شبخون کے بعد ان کی دلی کیفیت کافی حد تک تبدیل ہو گئی تھی۔ اس شبخون کے باعث ان کے لشکر کی ہزاروں لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ جب مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کے اندر جدھر نگاہ پڑتی لاشیں لاشیں دکھائی دیتی تھی، لہذا اس شبخون کی وجہ سے ہندوستان کے لشکریوں میں ایک طرح کی بددلی اور کم حوصلگی پھیل گئی تھی، اور مسلمانوں کا شبخون مارنے کا مدعا اور منشا بھی یہی تھا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو ہندوستان کے سارے راجاؤں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لشکر میں چینی گولیاں ہونی شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جو کامیاب اور دہلا دینے والا شبخون مارا ہے تو یہ ان کے لشکر کے لیے ایک طرح کی بدشگونی ہے۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے نواحیں لشکر میں اٹھنے لگی تھی۔ ان افواہوں پر قابو پانے کے لیے اور لشکریوں کا حوصلہ اور ولولہ قائم رکھنے کے لیے آپس میں صلح اور مشورہ کرنے کے بعد سارے راجاؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ راجاؤں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر یوں ہی مسلمانوں کے سامنے پڑاؤ کیے رکھا تو مسلمانوں کی اس کامیاب شبخون کی وجہ سے دن بدن ان کے لشکر میں بددلی پھیلنا شروع ہو جائے گی، جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، لہٰذا انہوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین نے بھی پہلے سے طے شدہ لائے عمل کے مطابق اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے لشکر کی صفیں درست کر لی تھی۔ پھر سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے سامنے آیا، گھوڑے کا رخ موڑ کر قبلہ رو ہوا، سجدے کے انداز میں اس کا سر اپنے ذہن کے ہینے پر جھک گیا تھا۔ پھر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری میں دعا مانگتے ہوئے اپنے خداوند قدوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے اللہ، اس بے جہت آسمان تلے اور روز و شب کی روانی میں میرے کمزور شانوں پر میری ملت کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے اللہ، اگر تیری حمایت حاصل نہ ہو تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، تیری نصرت میرے ساتھ نہ ہو تو میرے پاس تنکا بھی نہیں۔ میرے مالک، ہمارا دشمن ہمارے سامنے غم کی عقوبت گاہوں زمانے بھر کی وحشت، مجبوریوں کی چادر پھیلاتی موت کی آندھی کی طرح ہے۔ میرے اللہ، تو ہی روشنی کو روشنی سے اور جوہر کو جوہر سے بناتا ہے، بحر کے سینے میں تو ہی بے نام اور انجانے جزیرے کھڑے کرتا ہے، پھولوں کے زندان میں تو ہی خوشبوؤں کو اسیر کرتا ہے، تو ہی خوشیاں بانٹنے بگولوں کی طرح آسمان پر بادلوں کی کشتیوں کو روا کرتا ہے۔ ارض و سما کی اس طلسم خانے میں میرے اللہ، تو ہی مجھ جیسے خام کار کو پختہ کار بنانے والا ہے۔ میرا اللہ، تیری بندگی ہی میرا کمال، تیری اطاعت ہی میرا جمال ہے۔ لا سے اللہ کی طرف سفر میرا، استغراق لبوں کی آنچ میں تیری حمد کی پرچھائیاں ہی میرا ہنر ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہمت دے، مجھے استطاعت دے کہ میں درد کی مثلت دائرے
बनाती मर्ग मौत की उलझन बनकर दुश्मनों की नजर में वीरानी फिरता चला जाऊं। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपना सर जेब के आहने से उठाया। इस मौके पर उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, होठ काट रहा था। एक भरपूर निगाह उसने अपने सामने अपने लश्कर पर डाली, बाएं जानिब लश्कर पर डाली, दाएं बाएं अपने लश्कर के साथ मुस्तैद खड़े अपने सालारों पर डाली। फिर उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। इंतहाई इंकिसारी से एक बार आसमान की तरफ देखा, अपने घोड़े का रुख मोड़कर उसका मुंह मशरिक की तरफ किया। अब वो बड़े गौर से दुश्मन की 3 से 4 लाख के दरमियान लश्कर की तरफ देख रहा था। हिंदुस्तान के राजाओं के लश्कर के अंदर इस वक्त एक ना खत्म होने वाला शोर बरपा था। लश्कर के आगे आगे 3,000 हाथियों को इस्तीवार किया जा चुका था। उन पर उनके महावात बैठ चुके थे। हाथियों के बीच में और हाथियों के पीछे लश्कर की सफ़ें बड़ी तेजी से दुरुस्त की जा रही थी। राजाओं के लश्कर में मुसलमानों से गुज़िश्ता शब के खून का इंतकाम लेने के लिए शोर उठा हुआ था। हिंदुस्तान के ज्यादातर राजा अपने ही लश्कर के वस्ती हिस्से में थे। उनमें से कुछ जंगी रथों में सवार थे, कुछ घोड़ों की सवारी कर रहे थे। लश्कर के अंदर एक हलचल बरपा थी, आवाजों का एक तूफान था जो समातों के पर्दे पर बाज़गश्त का एक खौफनाक तासुर छोड़ा जा रहा था। दूसरी तरफ मुसलमानों के अंदर अगली सफ़े में तबल बज रहे थे, जबकि लश्कर के अंदर जगह जगह जिंदा दिल लश्करी ऊंची आवाजों में तकबीरें बुलंद कर रहे थे। दोनों लश्करों के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक अनोखा शोर वलवला था। दोनों लश्कर कुछ देर तक इसी कैफियत में मुबतला रहे। शायद हर कोई यही ख्याल कर रहा था कि दूसरा हमलावर होने की इब्तिदा करे। चूंकि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने दुश्मन से निपटने के लिए पहले ही अपना लाए अमल तैयार कर रखा था और उसने पहली ज़रब न लगाने का तहिया किया था, लिहाजा अपने लश्कर के साथ वो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा था। ये सूरत हाल देखते हुए हिंदुस्तान के सारे राजाओं ने आपस में सुलह और मशवरा किया, मुसलमानों पर पहला हमलावर होने का फैसला कर लिया। इस फैसले के साथ हिंदुस्तान के राजाओं का मुत्तहद लश्कर इस तरह आगे बढ़ा जैसे हड्डियां चबा जाने वाली रात खून पी जाने वाले दिन में शराब असर लम्हात किसी पर वारिद होने के लिए अपनी पेश कदमी का आगाज करते हैं। फिर देखते ही देखते राजाओं का मुत्तहिद लश्कर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर पर हमलावर हो गया था। इसी लम्हे मुसलमान के लश्कर ने भी सुल्तान के इशारे पर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया था, और वो भी ख्वाबों के उजड़े खेतों पर रक्स करती आंधियों की खरोश और जिंदगी के लहू को नक्ता जोश पर पहुंचा देने वाले रगों में खौलती आग की तरह टूट पड़े थे। मैदान जंग खून उगलने लगा था, जहन मबहूत आंखें फितराने लगी थी। हयात की हर आरजू बरसते लपकते मौत के शोलों की जद में आ गई थी। चारों तरफ अनगिनत बहते नालों का सा शोर उठ खड़ा हुआ था। दोनों तरफ की लश्करी तड़प कर बेशुमार फूट पड़ने वाले लादों की तरह हमलावर होने लगे थे। तलवारें ढाले से चीखों से आहें होठों से टकराने लगी थी। मुसलमान लश्करी तड़पती बर्क और कर्ब लम्हों के दुख की तरह हमलावर हुए थे। राजाओं के मुत्तहद लश्कर ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि वक्त ज़ाय के बगैर मुसलमानों को पसपा होने पर मजबूर कर दे, लेकिन मुसलमान जवाबी कार्रवाई भी करते हुए आंसुओं और साखों करवटी लेते अजाबों की तरह हमलावर हुए थे। हिंदुस्तान के तबकाती जबर पर फितरत का कहर और जात पात की लानत पर वीरानों का सितम बनकर नुज़ुल कर रहे थे। कुछ देर ऐसा ही समा रहा। सुल्तान शहाबुद्दीन के तीर अंदाज हाथियों को अपना निशाना बनाते हुए हाथियों को उन्होंने छलनी करके रख दिया था, जिसकी बिना पर हाथियों के आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो गई थी। और इस सूरत हाल में सुल्तान के लश्करों की हिंदुस्तान के राजाओं के लश्करों से टकराने का मौका मिल गया था, जो हाथियों के बीचों बीच आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक जमकर दुश्मन का मुकाबला करने के बाद जब सुल्तान ने तकबीर बुलंद की तो उसकी तकबीर के जवाब में उसके सालारों और सारे लश्कर ने बड़े हौलनाक अंदाज में तकबीरें बुलंद की। फिर थोड़ी देर के बाद लश्कर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गया था। इससे राजाओं ने अंदाजा लगा कि मुसलमानों ने एक बार तकबीरें बुलंद करके अपने हौसलों की तजदीद करते हुए अपने लिए फायदा हासिल करने की कोशिश की होगी, और जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो पसपा होना शुरू हो गए होंगे। अब राजाओं को यकीन हो गया था कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं और इस मौके पर उन पर जोरदार हमला किया जाए तो अपनी फतह और उनकी शिकस्त को यकीनी बनाया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने अपने लश्करों को ललकार और इस ललकार के जवाब में उनके लश्करी हाथियों के बीचों बीच से बड़ी तेजी के साथ आगे निकलते हुए एक तरह से मुसलमानों का पीछा करने लगे थे। मुसलमानों की पसपाई बड़ी तंजीम और बड़े नज्म के साथ थी, और वो अपने सामने हमलावर होने वाले राजाओं के लश्करियों को रोक भी रहे थे और पीछे भी हट रहे थे। जब सुल्तान शहाबुद्दीन ने देखा कि दुश्मन के लश्करी अपने हाथियों से काफी आगे निकल आए हैं, तब एक बार फिर उसने तकबीर बुलंद की, और उसकी तकबीर के जवाब में पहले की तरह उसके सालारों और लश्करियों ने तकबीरें बुलंद की। उसके बाद मैदान जंग में एक नया इनकलाब बर्पा होना शुरू हुआ था।
سلطان کے لشکر نے ایک دم پسپا ترک کر دی، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جارحیت پر اتر آئے۔ اس کے بعد سلطان کا لشکر اپنے سامنے دشمن کے لشکریوں پر بصارتوں کے اندھا کر دینے والی آتش کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ یہ تبدیلی ہندوستان کے سارے راجاؤں کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی۔ وہ تو اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھے کہ مسلمان اب پسپا ہونا شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کی شکست کا اعلان ہونے میں بس تھوڑی سی ہی دیر ہے، اور اب وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی طرف سے مسلمانوں کی شکست کا منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان لشکری تو پلٹ کر دھرتی اور آکاش کو روننے والے جذبوں اور دل کی خیالش میں اضافہ کرتے جذبات کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے، تب ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ مسلمانوں کی چال ہے، اور اسی چال کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ پسپائی ترک کر کے جارحیت اختیار کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے سلطان کی سرکردگی میں اس قدر پرجوش انداز میں حملہ کیے کہ راجاؤں کا وہ لشکر جو اپنے ہاتھیوں سے آگے نکل کر مسلمانوں کے تعاقب میں آیا تھا، اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان کا لشکر بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ قطب الدین ایبک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے ایک پہلو کی طرف، جبکہ ایبا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے دوسرے پہلو کی طرف بڑھا تھا، جبکہ دشمن کے سامنے خود سلطان شہاب الدین اور حسین خرمل رہے تھے۔ پھر سلطان نے پہلے سے طے شدہ لائے عمل کے مطابق اس کے لشکریوں میں سے جو بہترین تیر انداز تھے انہیں پہلے کی طرح اپنے تیروں سے ہاتھیوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جبکہ باقی لشکریوں نے سلطان اور حسین خرمل کی سرکردگی میں سامنے کی طرف سے راجاؤں کے لشکر پر خوفناک حملہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب راجاؤں نے اپنے لشکریوں کو للکارا اور جو چاہتے تھے کہ ایک بار پھر پوری قوت سے سامنے کی طرف حملہ ور ہو اور مسلمانوں کے سامنے والے لشکر کو رول کر اپنی فتح کو یقینی بنائے۔ جس وقت وہ ایسا کر رہے تھے اسی وقت ایک طرف سے ایبا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ موت کی دست خونی اور گرم ہینوں کے رقص کی طرح دشمن کے دائیں پہلو پر اور بائیں پہلو پر قطب الدین ایبک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قضاء کی برستی برسات اور قہر مانت کی اڑتی امنگوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ اب راجاؤں کے لیے کڑی سوچوں کی منجدھار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی طرف سے اپنی ساری قوت کو اپنے سامنے جھونک کر سلطان کی شکست کو یقینی بنانا چاہتے تھے، اور اسی لمحے ان کے لشکر کے پہلو پر ایبا اور قطب الدین ایبک نے حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے ان کے لشکریوں کو کاٹتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین کے وہ لشکری جنہیں سلطان نے صرف ہاتھیوں کو نشانہ بنانے پر مقرر کیا تھا، انہوں نے تیر اندازی کرتے ہوئے ہاتھیوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ہاتھیوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور آگے بڑھنے کے بجائے پلٹے اور اپنے لشکروں کو رونتے ہوئے بھاگے۔ جس وقت ہاتھی راجاؤں کے لشکر کو رونتے ہوئے پچھلی سمت جا رہے تھے، سلطان شہاب الدین نے اس موقع پر بڑا دانشمندانہ قدم اٹھایا، ہاتھیوں کے بیچ ہی میں پیچھے اپنے اور حسین خرمل کے لشکر کو آگے بڑھایا، اور جس وقت ہاتھیوں کی وجہ سے دشمن کے لشکری افراتفری اور بد نظمی کا شکار تھے، سلطان اور حسین خرمل نے ان پر حملہ ور ہو کر بڑی تیزی سے ان کی صفوں کی صفیں کاٹ کر رکھ دی، جبکہ یہی کام دائیں بائیں سے قطب الدین ایبک اور ایبا بھی شروع کر چکے تھے۔ راجاؤں کا متحد لشکر چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھا، لہذا راجاؤں کے حکم پر بھپرے ہوئے ہاتھیوں کو لشکر سے باہر نکال کر پڑاؤ سے بھی پچھلی سمت بھیج دیا گیا۔ ہاتھیوں کے نکل جانے کے بعد راجاؤں نے قدرے اپنے لشکر کو سنبھالتے ہوئے پھر جنگ کی بھٹی زور و شور سے گرم کر دی تھی۔ ترائن کے میدانوں میں ایک بار پھر پیمانہ زور شب میں زرگرم گاہ کلثوموں کی جزر کی طرح بھڑک اٹھی تھی، زندگی موت کی علامت بننے لگی تھی۔ دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدانوں میں چاروں طرف جسموں کو جلاتی لوک آگ و موت کا کھیل شروع کر چکی تھی۔ راحتیں اور حلاوتیں نفرتوں اور شقاوتوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نسلیں پاگل پن جسموں کا عاشق بن کر زمانے بھر کی وحشتیں اپنے دامن میں سمٹنے لگا تھا۔ چاروں طرف دونوں لشکریوں کے اندر مسائل، عذاب اور حادثات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کو اپنے لشکر سے نکالنے کے بعد راجاؤں نے ایک بار پھر آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک بار پوری طاقت و قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور پہلے کی طرح ترائن کے میدان میں ان کی شکست اور ان کی ہزیمت کو ان کا مقدر بنایا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سارے راجاؤں نے جو اس وقت متحد لشکر کے وسطی حصے میں اپنے لشکریوں کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے، اپنے لشکریوں کو پیغام بھجوایا کہ ایک بار اپنی اور جان فروشی سے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے اور ہر صورت میں ان کی شکست کو یقینی بنانا ہے۔ سارے لشکریوں کو جب یہ پیغام ملا تو ایک بار پھر راجاؤں کے لشکر میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا اور وہ اپنے آخری کوشش کے طور پر اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے تنہائیوں کی وسعتوں میں زندگی کی گرم
जज्बों को खून से तर करती आंधी, जुनून फरोशी ख्यालों को खाक, यादों को राख बनाती उकुबत खेज घटाओं की तरह टूट पड़े थे। राजाओं के लश्कर की तरफ से ये एक हौलनाक और जानलेवा हमला था। उनके लश्करियों ने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत मुसलमानों के खिलाफ सर्फ कर दी थी। दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर भी अब मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। पहले मैदान में छिंगाड़ते झूमते हाथी उनके लिए मसाइल खड़ा कर रहे थे। अब हाथियों के निकलने के बाद जब राजाओं के लश्कर ने पूरी ताकत और कुव्वत से हमला किया तो उसका जवाब देते हुए सुल्तान शहाबुद्दीन ने उसके सालार और लश्करी भी राजाओं के मुत्तहद लश्कर पर तवाहम मिटा देने वाले वारफ्ता शौक, गमगून की धूप और रूह की प्यास, दुख का साका, कर्ब की दास्तान और जमीन का हादसा बनते दर्द और अलम के निसाब की तरह टूट पड़े थे। जिस वक्त दोनों तरफ के लश्करी अपने सरों पर कफन बांधकर अपनी अपनी फतह मंदी, अपनी अपनी कामयाबी और कामरानी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त मुसलमानों की कामयाबी और फतह मंदी का पहला दर खुला। ऐबा जो राजाओं के लश्कर के एक पहलू की तरफ से हमलावर होते हुए आगे बढ़ा था, उसने दुश्मन के लश्कर की कई सफ़े रोंद कर दुश्मन के लश्कर के वस्ती हिस्से की तरफ पेशकदमी की थी। उसने देखा उसके सामने जरा फासले पर दहली का राजा गोविंद राय, जो अजमेर के राजा पृथ्वीराज का भाई था, अपने लश्करियों को ललकार रहा था। पहले वो हाथी पर सवार था। अपने लश्कर के अंदर इधर उधर तेजी से घूमने के लिए हाथी मुनासिब नहीं था, इसलिए कि वो सुस्त रफ्तार था। लिहाजा वो हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गया था और घोड़े को इधर उधर भगाते हुए अपने लश्करियों को टूटकर मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए उभार रहा था। ऐबा इस वक्त अपने कुछ लश्करियों के नरगे में था जो उसके आगे पीछे दाएं बाएं दुश्मन पर जरबे लगा रहे थे। दिल्ली के राजा गोविंद राय को देखते हुए ऐबा का खून खोल उठा। तलवार उसने जेन के साथ लटकाई, जेन के साथ लटकती हुई कमान संभाली, तीर जमाया, निशाना लिया, सांस रोकी और उसने जब तीर चलाया तो उसका तीर दिल्ली के राजा गोविंद राय के जरदाह की कड़ियों को फाड़ता हुआ उसके दिल के पार हो गया था। तीर लगने से जब गोविंद राय झुका तो उसी वक्त आगे पीछे दो तीर आए और उन्होंने गोविंद राय के जर्राह की कड़ियों को चीरते हुए गोविंद राय के जिस्म को छलनी करके रख दिया था। गोविंद राय घोड़े से गिरकर दम तोड़ गया था। गोविंद राय के इर्द गिर्द जो उसके लश्करी मुसलमानों के खिलाफ जंग आजमा थे, जब उन्होंने देखा कि गोविंद राय तो अपने घोड़े से गिरकर खत्म हो गया है तो हौसला हार बैठे। इसी लम्हे ऐबा ने अपने लश्करियों को ललकारा और पहले की निस्बत ज्यादा और जज्बे के साथ वो इसी सिम से हमलावर होना शुरू हो गए थे। एक तो गोविंद राय के मारे जाने से राजाओं के इस लश्कर के हिस्सों ने जी चोड़ा था, दूसरा ऐबा के हमले में तेजी पैदा हो गई थी। लिहाजा इस सिमत की सफ़े उलट गई। जो लश्करी हमलावर मुसलमानों का मुकाबला ना कर सके वो अब जाने बचाकर अपने लश्कर के उसी हिस्से की तरफ भागे जहां दूसरे बहुत से राजा अपने लश्करियों के उभार रहे थे। अजमेर के राजा पृथ्वीराज को जब खबर हुई कि उसका भाई गोविंद राय जंग में काम आ चुका है और उसकी तरफ के लश्करी पीछे हटकर वस्ती हिस्से का रुख कर रहे हैं, तब उसने अपने लश्कर के दूसरे पहलू के कुछ लश्करियों को इस तरफ जाकर मुसलमानों की राह रोकने का हुक्म दिया। ये पृथ्वीराज की गलती थी। जो ही उसने अपने लश्कर के दूसरे पहलू से ऐबक की तरफ अपने लश्कर के कुछ हिस्सों को रवाना किया, उसी सिम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जोरदार दबाव डालते हुए उनके लश्करों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ से लश्कर के जो हिस्से पृथ्वीराज ने ऐबक की तरफ रवाना किए थे वो भी वहां टिक ना सके, इसलिए कि उस तरफ से मुसलमान दुश्मनों को रेगड़ते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ऐन उसी लम्हे एक और इनकलाब बर्पा हुआ। मोरखी लिखते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन ने जब देखा कि पहलुओं की तरफ से उसके लश्कर के दोनों हिस्सों ने दुश्मन के पहलुओं को बुरी तरह मजरूह करते हुए उनके वस्ती हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, तब सुल्तान ने अपने 12,000 चुईदा लश्करियों के साथ दुश्मन पर आखिरी जब लगाने का फैसला किया था। अपने 12,000 सवारों के साथ पुरजोश अंदाज में शहाबुद्दीन ने पहले तकबीरें बुलंद की। उसके बाद शहाबुद्दीन जिंदगी और मौत का खेल खेलने के लिए राजाओं के लश्कर पर तकदीर के अलमनाक हादसों, अदावतों की मुतहर्रिक चट्टानों, खुद फरामोशी की दिए रोशन करते फितरत के अलमनाक जज्बों की तरह टूट पड़ा था। सुल्तान शहाबुद्दीन की इस तरह हमलावर होने के साथ ही हुसैन खरमल, जो सुल्तान शहाबुद्दीन के पहलू व पहलू काम कर रहा था, वो भी सुल्तान ही के अंदाज में दुश्मन पर टूट पड़ा था। और राजाओं के लश्कर की हालत ये थी कि वो तीन तरफ से घिर चुके थे। सामने की तरफ से सुल्तान शहाबुद्दीन और हुसैन खरमल मौत का खेलते हुए उनके लश्कर की सफ़ों को उलटते हुए उनकी तादाद बड़ी तेजी से कम करते जा रहे थे, जबकि उनके लश्कर की दोनों पहलुओं की तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा जोरदार हमला करते हुए उनके लश्कर के उसी हिस्से की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगे थे। इन खौफनाक हमलों के दौरान हिंदुस्तान के बहुत से राजा भी मारे गए। दिल्ली का राजा गोविंद राय पहले ही मारा जा चुका था। उसकी वजह से लश्कर के अंदर बददिली भी फैली हुई थी
और जो मजीद राजा जंग में काम आए अब उनके लश्कर जी छोड़ बैठे और भाग खड़े हुए। सुल्तान के हाथों हिंदुस्तान के 100 से ज्यादा राजाओं की मुत्तहद लश्कर की बदतरीन शिकस्त थी। अजमेर के राजा पृथ्वीराज ने इस मौके पर बचे कुचे लश्करों को संभाल देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, इसलिए कि उसने अंदाजा लगा कि जंग की इब्तिदा में उसके साथ जो लश्कर था वो मुसलमानों के लश्कर से 3 गुना से ज्यादा था। अब जिस वक्त पसपई इख्तियार हुई तो उनके लश्करियों की इस कदर कत्लेआम हुआ कि जो लश्कर बचा उसकी तादाद मुसलमानों के लश्कर से बराबर हो गई थी। अजमेर के राजा पृथ्वीराज ने जब देखा कि चारों तरफ पसपाई और भाग दौड़ मच गई है और उसके दूसरे राजाओं के लश्करी अपने अपने जानें बचाते हुए भाग खड़े हुए हैं, तब पृथ्वीराज के सामने भी भाग कर अपनी जान बचाने के अलावा कोई रास्ता ना दिखा। इस बिना पर उसने अपने घोड़े की बागें मुड़ी और भाग खड़ा हुआ। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ये सारी सूरत हाल देख रहा था। जंग की एक तरह से रुक चुकी थी, मुसलमान फतेह अजीम हासिल कर चुके थे। इस मौके पर सुल्तान गौरी ने भागते दुश्मन का बुरी तरह ताक़ुब किया और उनकी तादाद मजीद कम कर दी और उनकी तादाद मजीद कम के साथ ही उसने कुछ दस्ते मुकर्रर किए और उनके जिम्मे काम लगा कि हर सूरत में अजमेर के राजा पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करके उसके पास लाया जाए। पृथ्वीराज ने भागकर अजमेर की तरफ से निकल जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि शहाबुद्दीन ने जो दस्ते उसे गिरफ्तार करने के लिए मुकर्रर किए थे वो उसके और अपने दरमियान फासलों को बड़ी तेजी से सिमटते रहे। यहाँ तक कि दरिया सरस्वती के किनारे उन्होंने पृथ्वीराज को जा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने हल्के में लेकर सुल्तान की तरफ मुड़े थे। अजमेर के राजा पृथ्वीराज को जब सुल्तान शहाबुद्दीन के सामने पेश किया गया तब सुल्तान काफी देर तक उसे सर से पांव तक देखता रहा। उस दौरान उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी और पेशानी पर गजबनाकी की सलोटें नुमायां हो गई थी। उसके बाद वो पृथ्वीराज को मुखातब करते हुए कह रहा था, तो तुम हो अजमेर के राजा पृथ्वीराज, जरा अपनी हालत का मुशाहिदा करो। तुम तो हिंदुस्तान के सारे राजाओं को अपने साथ मिलाकर और उन्हें मेरा दुश्मन बनाकर जंग पहले ही वक्त बदतरीन जबर तशद्दुद के खंजरों और काले मकरो खन्नास जैसी गुफ्तगू करते थे। पृथ्वीराज, इस जंग की इब्तिदा होने से पहले मैंने जो कासिद तुम्हारी तरफ अमन और सलामती का पैगाम देकर भेजा, तुमने न सिर्फ उसकी तौहीन की बल्कि मेरा और मेरे दीन का तमस्खर भी उड़ाया। पृथ्वीराज, अगर तुम मेरे कासिद और मेरी जात की तौहीन करते, तमस्खरा उड़ाते तो तुम्हारा ये रवैया यकीनन मेरे लिए बर्दाश्त और दर गुजर करने का था, लेकिन मेरे दीन का मजाक उड़ाने के वक्त जो अल्फाज तुमने इस्तेमाल किए थे उनकी चुभन तो मैं अब तक अपने दिल में महसूस करता हूँ। जो अल्फाज तुमने मेरे कासिद से कहे थे वही अल्फाज उसने आकर मेरे सामने बयान किए थे। जानते हो, अल्फाज सुनकर मैंने अपनी तबीयत अपने नफ्स के मुताबिक खाना पीना छोड़ दिया था और मेरे इस अमन और सलामती के पैगाम में दूसरे राजाओं से मशवरा करने के बाद जो खत तूने मेरे नाम लिखा, मैंने उस खत को पढ़ने के बाद महसूस किया कि इस खत में मेरे लिए लफ्जों का जहर और हुर्फों की तीर थे। तेरे गुरूर की तेश, तेरे तखरीब कारी की आतिश थी, तेरे लहजे की नफरत और नखुवत, तेरे खुद परस्ती का कीना मैंने महसूस किया। इस खत में मैंने तेरी बेहसी की ज़रब और अपने लिए रूह का कर्म भी महसूस किया था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज, जरा मेरे हौसले, मेरे सब्र और तहम्मुल पर निगाह दौड़ा। हिंदुस्तान की सरजमीन में दोबारा मुझे पसपाई का सामना करना पड़ा, एक नहरवाला के राजा के सामने दूसरी बार यही इन्हीं तराइन के मैदानों में। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और तुम सारे राजा सिर्फ एक बार मेरे हाथों शिकस्त उठाने के बाद तूफानों के सामने हुस्न खशाक की तरह उड़ कर रह गए हों। पृथ्वीराज, मैं अपनी मुख्तसर से लश्कर के साथ तारीख शब की रिदा में तारीकियां चिंती मशगलों की तरह गजनी से हिंदुस्तान की तरफ आता था, जहां मेरे लिए हर मोड़ पर इम्तिहान, हर गाम पर एक आजमाइश थी। इसके बावजूद मैंने अपने अज़ाइम को डगमगाने नहीं दिया। पृथ्वीराज, जंग से पहले तू गुर्दों का सीना चीरने जंग से पृथ्वीराज, जंग से पहले तू गुर्दों का सीना चीरने, फिजाओं की नब्ज रोकने, हवाओं की सांसों की हब्स लम्हों का शिकार करने, तश्कीनी का फरेब देकर शरियानों में नश्तर उतारने की बातें करता था। इस वक्त तूने ये क्यों ना सोचा कि कभी कभी वक्त का सैल रवां जिंदगी और ख्वाब का फर्क मिटा देता है। कभी कभी जियत की सिराब भी हश्र सा सामान दुश्मन साबित होती है। कभी कभी एक सहा हुआ पिंजी भी बददिली का जख्म दे जाता है। पहले तू तो बड़ा बोलता था, अब अपनी अना की शिकस्त तले तू
पहले तू बड़ा बोलता था, अब अपनी अना की शिकस्त तले तू जंदान की सलाख फसीलों जैसा चुप। जोरो जबर की चक्की तले किसी माजी की गुंजों जैसा खामोश और सुलगते मुहिब अंधेरों में रेजा रेजा सांसों जैसा पुरसुकूत क्यों खड़ा है? कुछ बोलो, मैंने अब तक जो कुछ कहा है इसका कम से कम जवाब तो देना चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान जब खामोश हुआ तब बड़ी आजिजी और बड़ी इंकिसारी का मुजाहरा करते हुए पृथ्वीराज कहने लगा, यकीनन मुझसे खता, मुझसे गलती हुई। मैं अपने माजी का ये रवैये की माफ़ी मांगता हूँ, मुआज़रत ख़्वाह हूँ। अजमेर के राजा पृथ्वीराज के इन अल्फाज पर सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा मगर तंजिया सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर पृथ्वीराज को मुखातब करते हुए कह रहा था, अब माफ़ी मांगते हुए जब पानी से सर गुजर चुका है, जब सारा मामला ख़त्म हो चुका है, जब चारों तरफ आतिश फिशा फट चुकी है, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा जब वक्त का वहशीनाक बड़े बड़े फिरौनों, बड़े बड़े सरकशों, बड़े बड़े सुरमाओं को अंदेशों के दरवाजों पर ला खड़ा करता है, तूने पहले क्यों गौर फिक्र ना किया? पत्थरों के शहर में कभी कभी नाजुक सा कोई आईना भी इनकलाब बर्पा कर देने का बाइस बन जाता है। तूने पहले क्यों ना अपनी ज़ात पर गौर किया और ये सोचा कि आज तो तू उरूज है, कल तेरा तंजुल भी तेरा सामना कर सकता है। यहाँ तक कहने के बाद जब सुल्तान खामोश हुआ कुछ सोचा, फिर दोबारा पृथ्वीराज को मुखातब करते हुए कह रहा था, जरा अपने हाल, अपने माजी का तकाबली जायजा तो ले। इस शिकस्त उठाने से पहले तू अहले दानिश की सारी दानिशवरी अपनी जात से वाबिस्ता करता था, इसलिए कि तूने मेरी दुश्मनी का हवा खड़ा करके हिंदुस्तान के सारे राजाओं को अपने साथ मिला लिया था और वो तेरे जमाइती बनकर एक तरह से तुम्हारे मातहत काम करने पर तैयार हो गए थे। इस वक्त तो तेरे पैर जमीन पर नहीं लगते थे। अब जरा अपनी हालत का जायजा ले। इस वक्त तू मेरे सामने मिट्टी के आरजी घरोंते, बिनती बिगड़ते बेकार खिलौने और बंजर धरती की बदकिस्मती बनकर खड़ा है। सुल्तान की सारी गुफ्तगू के जवाब में पृथ्वीराज कुछ ना बोला, खामोश रहा। इस मौके पर अपने सामने खड़े अपने सालार हुसैन खरमल की तरफ सुल्तान ने अजीब से अंदाज में देखा और मखसूस इशारा किया। ये इशारा पाते हुसैन खरमल ने अपने कुछ मुसलिह जवानों के साथ हरकत में आया। पृथ्वीराज को पकड़कर पड़ाव से बाहर ले जाया गया और वहां उसका खात्मा कर दिया गया। इसी दौरान एक लश्करी पड़ाव की तरफ से भागा हुआ आया, सीधा सुल्तान शहाबुद्दीन के सामने खड़ा ऐबा की तरफ गया और ऐबा के कान में कोई राजदाना गुफ्तगू करने लगा। सुल्तान ने उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। आने वाले उस लश्करी ने न जाने ऐबा के कान में क्या कहा। ऐबा का रंग फिक्रमंदी और दुख में पीला और सरसू होकर रह गया। सुल्तान के सामने हटकर वो पड़ाव की तरफ जाने ही लगा था कि सुल्तान ने उसे मुखातब किया, ऐबा मेरे बेटे मेरे पास आओ। ऐबा के साथ साथ वो लश्करी भी अपनी जगह पर रुक गया जिसने ऐबा के कान में कुछ कहा था। ऐबा सुल्तान के सामने आ खड़ा हुआ। सुल्तान ने बड़ी शफकत में उससे मुखातब किया, बेटे क्या मामला है? उस लश्करी ने जो कुछ तुम्हारे कान में कहा है उसे सुनकर तुम्हारा चेहरा फौरन तब्दील हो गया है। मैं तुम्हारे चेहरे पर पीलाहट और फिक्रमंदी के आसार देखता हूँ। बताओ क्या बात है? कुछ देर तक ऐबा कुछ ना कह सका, अपने होठ काटता रहा। इस दौरान जवाब तलब से अंदाज में सुल्तान ने आने वाले लश्करी की तरफ देखा। तब लश्करी बोल उठा, सुल्तान मोहतरम मैं पड़ाव की तरफ से आया हूँ। पड़ाव में ऐबा की बीवी को किसी ने कत्ल कर दिया है। ऐबा के खीमे में उसकी बीवी मुर्दा हालत में पड़ी है। वहाँ एक कागज भी पड़ा हुआ है जिसके अंदर वो खंजर गड़ा है जिसके साथ ऐबा की बीवी को हिलाक किया गया है। ये खबर सुनकर सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, चुपचाप पड़ाव की तरफ चल दिया। ऐबा और दूसरे सालार सुल्तान के पीछे पीछे थे। सुल्तान जब ऐबा के खीमे में दाखिल हुआ तो वहाँ फर्श पर ऐबा की बीवी की लाश पड़ी हुई थी। लाश के करीब एक कागज पड़ा था। उस कागज के अंदर एक खून आलूद खंजर गड़ा हुआ था और कागज पर एक तहरीर भी दिखाई दे रही थी। सुल्तान ने खंजर खींचकर कागज से निकाला। कागज को उठाकर जो उसने पढ़ा तो उस पर एक तहरीर मरकूम थी, वो लड़की जो अपने बाप और भाइयों से बगावत करके भागी हो उसका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। कागज पर लिखी तहरीर पढ़कर सुल्तान ने कागज ऐबा की तरफ थमा दिया। ऐबा ने भी कागज पर लिखी तहरीर पढ़ी। कागज को तहिया करके उसने उसे अपने लिबास में महफूज कर लिया। इस मौके पर ऐबा सुल्तान की तरफ देखते हुए कुछ कहना ही चाहता था कि सुल्तान ने उसे मुखातब करने में पहल की। ऐबा ये काम तुम्हारी बीवी के भाइयों और बाप की तरफ से सरजद हुआ है। वो उसे फरोख्त करना चाहते होंगे और ये फरोख्त होने से पहले ही भागकर हमारे पास आ गई और उसकी तलाश में होंगे। उन्हें खबर हो गई होगी कि उसने यहाँ हमारे लश्कर में पनाह लेकर तुमसे शादी कर ली है, लिहाजा वो किसी मुनासिब मौके पर तुम्हें तलाश कर रहे होंगे।
اور جنگ کے دوران ان کے آدمی کسی نہ کسی طرح پڑاؤ میں داخل ہو کر اس خیمے میں داخل ہوئے اور اس کا کام تمام کر کے چلتے بنے۔ بیٹے ایسا گھنونا فعل کرنے کے بعد وہ بچ نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کی تجہیز اور تکفین کا کام سر انجام دینا ہوگا، پھر چند دن کے وقفے کے بعد میں چند دستے تمہارے حوالے کروں گا اور انہیں لے کر تم کھوکھروں کی وحشی قبائل کی طرف جانا، وہاں اس کے باپ اور بھائیوں سے ملنا، انہیں صورتحال سے آگاہ کرنا اور قبیلے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کے باپ اور بھائیوں کا خاتمہ کرنا، لیکن یہ احتیاط رہے کہ وہاں کسی بے گناہ کے انتقام کا نشان نہ بنایا جائے، اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک عالم دین کھوکھروں کے قبیلے کے اندر تبلیغ کا کام سر انجام دے رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی تبلیغ رنگ لائے گی اور ایک کھوکھرو خلقہ بگوش اسلام ضرور ہوں گے۔ بہرحال تمہاری بیوی کا خون رائے کا نہیں جائے گا، قاتل جو کوئی بھی ہے، وہ کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، وہ تعداد میں کتنی ہی کیوں نہ ہو، ان سے اس قتل کا بڑا بھیانک انتقام لیا جائے گا۔ اب آؤ پہلے تمہاری بیوی کے علاوہ جنگ کے دوران کام آنے والے لشکریوں کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دے، اس کے بعد کسی اور کام کی تکمیل کرے۔ اس کے بعد سلطان اس کے سارے سالار حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے ایبا کی بیوی کے علاوہ جنگ کے دوران جس قدر لشکری شہید ہوئے تھے ان کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا گیا۔ لشکریوں کے آرام اور استراحت کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے سالار جنگ میں زخمی ہونے والے اپنے سارے لشکریوں کے دیکھ بھال اور مرہم پٹی کا سامان کرنے کے بعد دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمٹ کر اپنے قبضے میں کرنے لگے تھے۔